Good morning, students. Welcome to online political science class again. Today again we are moving towards the same chapter, that is chapter 2, end of bipolarity. So far we have seen how did the superpowers has emerged, how did USSR and US came into being after the Second World War, how did the Cold War begin, okay, the long process of Cold War, that is 1945 to 1991, conflict, crisis, so much of involvement in activities that is being seen in this whole process of Cold War, okay. And then we have also came into the area where we have studied how did USSR came into being, okay. How did in 1917 through a Bolshevik revolution USSR came into being? How did Tsar Nicholas II has been overthrown by the common people or revolutionaries? And basically there are two revolutionaries party. One is Menshevik party, one is Bolshevik party. So when they didn't like Nicholas II for a long time, the common people, the revolutionaries, they came forward and then they have tried to oust Nicholas II from the post of kingship, okay. And then this Menshevik party, first of all, they have formed the government after overthrowing Nicholas II in March. Then afterwards, it was seen that when Menshevik party was there and Kerensky became the prime minister, he was not that much bothered about the common people, and he was not actually materializing developing the area which is lagging behind that time. The USSR, the whole process was lagging behind, okay. He was not able to go through that much soundly. Plus that time there was another party, that is Bolshevik party, and from there Vladimir Lenin, he also wanted to come to that post. So automatically in November again, what happened? In November again there was a thing called a type of coup d'etat happened again, and through coup d'etat or forcefully again Kerensky has been overthrown by Vladimir Lenin. So November 1917, we have seen that Vladimir Lenin again came to power and he became the next prime minister of, not next prime minister, actually first prime minister, if you say, the prime minister of Russia or of USSR, okay. And 1917, the journey of USSR began, okay, and then it went on. 1945, 1939 to 1945, it has been indulged in Second World War, and then afterwards 1945 it became superpower, okay. So during before the Second World War, it was again seen that there again emerged many states in USSR, and that were comprising of actually 15 states, and those were, because USSR is located in the eastern area, that's why it was basically called Eastern Bloc, or it was called Socialist Bloc, because the whole of the countries there, they were following the policy of communism or socialism, okay. Plus it was also known as Second World. It was also known by the name Second World. So that is USSR, okay. Now in this chapter, actually we are studying what? We are studying the end of bipolarity. We are studying the collapse of USSR, okay. How USSR managed to win or managed to stand up at the power of superpower, and then after a long time, because of so many reasons, okay, outward reasons, inward reasons from its own area, from within the USSR also, there so many things happened that led to the fall of USSR, okay. So now today we are taking up another area, that is how this person Mikhail Gorbachev, how Mikhail Gorbachev was responsible for the fall down or for the disintegration of USSR, okay. So let's start the lecture. Now see, this person Mikhail Gorbachev, okay, the area today I have written down here, the area today Mikhail Gorbachev and the disintegration, okay. आपको इस चैप्टर में बहुत टाइम में आपको ये शब्द मिलेगा, disintegration मतलब downfall of USSR, okay. Now who was Mikhail Gorbachev? Okay, first of all we must know who was Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev was a general secretary of the Communist Party of USSR.
We all know that USSR, right from when Vladimir Lenin has established USSR, from that time there was only one party who is ruling the whole of USSR, and that is whom? Communist Party. So Mikhail Gorbachev was the General Secretary of the Communist Party, who was elected that time in 1985. Okay, actually when he became the General Secretary, that time actually in USSR so many things were happening. Okay, many economic conditions of USSR is deteriorating. Some way it can be said it is becoming stagnant, okay, because of some reasons. And that time he became the General Secretary, 1985. So as soon as he became the General Secretary, he tried to cope up the situation, or he tried to just rebuild the situation, we can say. Okay, उसको संभालना, उसको लेके चलना, उसको रीएस्टेब्लिश करना उनका एक एम बन गया था. Okay, so he has put up or he has brought up 2 types of reforms. ठीक है, तो वो जो 2 रिफॉर्म्स था वो कौन सा था, मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो आप. He showed to improve conditions of USSR. So हर तरह का कंडीशन, मेनली इकोनॉमिक कंडीशन. ठीक है, तो ही इंट्रोड्यूस 2 रिफॉर्म्स. 2 रिफॉर्म्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. क्या था उनका नाम? वन इज ग्लासनोस्ट, ओपननेस. उसका मतलब होता है ओपननेस, ये तो रशियन वर्ड है. ग्लासनोस्ट का मतलब है ओपननेस. ओके, और पेरिस्ट्रोइका, उसका मतलब हो गया रिस्ट्रक्चरिंग. What is restructuring? Restructuring of the economic and social conditions of USSR that time. ठीक है, तो ये जो था ना, ये ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका, ये एक्चुअली क्या था, ये इतना क्लियरली समझ में ही नहीं आया कि एक्चुअली गोर्बाचेव करना क्या चाहते थे उस टाइम में. ओके, बिकॉज he wanted to replace existing communism policies or socialism policies with more democratic ways. So at that time, actually, it was seen, the common people has seen that Western country में क्या हुआ, मतलब US के साइड में क्या हुआ at that time, कि बहुत सारा countries ने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया था. तो हमने पढ़ा ना कि 2 सुपर पावर ने 2 इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किया, 2 आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया. तो कैपिटलिज्म पॉलिसी began to become more successful there. Okay, it is running very good in conditions, और बहुत अच्छी तरह से चल रहा था. So that was seen by the common people. Okay, उन्होंने ये देख लिया. Okay, इसके बाद जिस तरह से यूएस खड़ा हुआ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएसएसआर ने भी अपने आप को खड़ा किया, नो डाउट. बट बहुत काफी वक्त के बाद देखा गया कि स्लोली सडनली इट बिगेन टू फॉल डाउन. ओके, कुछ ना कुछ ऐसा होते गया कि यूएसएसआर ने अपने आप को संभाल नहीं पाया. ओके, सो ये जो ग्लासनोस्ट एंड पेरिस्ट्रोइका है, एक्चुअली क्या है ये कुछ इतना क्लियरली नहीं पता. यहाँ पे उन्होंने लिखा कि he wanted to replace communism policies, but communism policy को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं करना था उनको. ये नहीं कि इसको हटा के दूसरा कुछ लेके आए, ये भी नहीं था उनको. He wanted to replace communism policy with some democratic ways. वो openness जो लिखा हमने, openness मतलब that time Gorbachev also wanted to have some दूसरे कंट्री के साथ भी रिलेशन बनाना चाहते थे वो. Okay, maybe with capitalism thought उनके दिमाग में तब आया था, but it was not clear that time. And जब struggle started in USSR, in other many areas, 15 republics में बहुत सारा जब struggle start हो गया, that time he was not able to cope with that situation. Okay, उन्होंने उसको संभाल के रखना, उसको मतलब जो हम क्या बोल सकते हैं उसको, जो ये होते जा रहा था, ये जो कंडीशन जो बिगड़ते जा रहा था. Okay, it was not able to be set up or again rebuilt by Gorbachev that time. Okay, he was very slow in his nature. और वो जो उन्होंने जब ये पकड़ा और इन्होंने जो पॉलिसी को रिफॉर्म करना स्टार्ट किया, ये तब तक बहुत लेट हो गया था. Okay, and common people became devastated with that policy. Actually, common people became devastated, they were not willing to have the system of communism or socialism in USSR that time. Actually ये बोल सकते हैं हम. Okay, फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखो लिखा मैंने कि बट फेल, तो ये कौन सा फेल, ग्लासनोस्ट एंड पेरिस्ट्रोइका जो पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट किया, इट बिगेन टू फेल बिकॉज लोगों को ये समझ में नहीं आया क्या था ये,
और इस टाइम जब ये कंडीशन में जब उन्होंने ये रिफॉर्म को जब एस्टेब्लिश किया, अडॉप्ट किया, तब इस टाइम it became very late. Okay, so common people were not really wanted to listen to all these things that time. Okay, and people started revolting. Boris Yeltsin, president of Russian Federation, emerged as a hero. Gorbachev resigned. अभी थोड़ा सा यहाँ पे बोलती हूँ who is Boris Yeltsin. That time देखो क्या हुआ, many people, many revolutionaries people, common people, revolutionaries people जो थे, those people they wanted to remove Gorbachev. Okay, they wanted to remove Gorbachev from his place and they wanted to have somebody else that time. तो एट दैट टाइम जो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी के और एक मेंबर थे हु दैट वाज बोरिस याल्सन. ही इज आल्सो that person Boris Yeltsin, he is also the president of Russian Federation. क्योंकि 15 स्टेट्स था ना, तो 15 स्टेट्स में से एक स्टेट था रशिया, और रशिया का जो रशियन रिपब्लिक का जो प्रेसिडेंट थे वो थे बोरिस याल्सन. ही इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी. तो बोरिस याल्सन और गोर्बाचेव दोनों मिलके काम कर रहे थे, बट ज्यादातर से किसका हो रहा था, गोर्बाचेव का, बट वो काम में नहीं आ रहा था एट दैट टाइम. ओके, सो सम पीपल वांटेड टू आउस्ट गोर्बाचेव फ्रॉम हिज place and they have gone through cope, मतलब उन्होंने एक साजिश किया गोर्बाचेव के अगेंस्ट में. ओके, बट दैट थिंग वाज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय बोरिस याल्सन. उन्होंने उस चीज को रिवोल्यूशनरीज को उन्होंने खत्म कर दिया. जो होते होते एक क्राइसिस होते होते मतलब एक नहीं हुआ, होते होते ये रह गया, नहीं हुआ. और बोरिस याल्सन ही वाज लुक्ड बाय कॉमन पीपल एज ए हीरो. सब लोगों ने सोचने लगे कि नाउ गोर्बाचेव he is becoming failure. So now this person Boris Yeltsin, maybe he is somebody who may do something for us, who may establish some new policies for us, who may give us so many things that we actually needed that time. So many things came in the mind of the common people. Okay, so automatically common people, they wanted to replace Gorbachev and they wanted to have Boris Yeltsin as in his place. Okay, तो बोरिस याल्सन became as a hero. That time he emerged as a hero. लोग उसके पास उनको देखने लगे. बोरिस याल्सन again he also taking the that situation. वो जो बोलते हैं ना कि हर इंसान सिचुएशन का फायदा उठाता है, तो that time बोरिस याल्सन he is taking the advantage of that situation. Okay, he has told the common people, let's change the system. Let's change the system. If you come along with me or if you all support me, I wanted to change the system. Okay, so I will change the system. I will bring some capitalism policies in this country as socialism or communism policy is not working in USSR. Okay, ये सब बोला तो कॉमन जो लोग थे they became satisfied. अरे ये कौन सा इंसान आ गया and he is giving us something, some different type of economic policies और दे के जा रहे थे, शायद ये कुछ काम आ जाएगा हमारा. Okay, that type of feeling came in the mind of the common people. Okay, that time आफ्टरवर्ड्स देखा गया ये थोड़ा दिन चलते चलते, मतलब जैसे कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये चलते 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 आ गया दिसंबर तक. दिसंबर आते आते दैट टाइम गोर्बाचेव वाज इन सो मच प्रेशर दैट टाइम फ्रॉम द कॉमन पीपल, फ्रॉम द रिवोल्यूशनरीज, फ्रॉम maybe from Boris Yeltsin also, that automatically he resigned from that post. He resigned from the post of general secretary. Okay, and that time क्योंकि हम सबको पता है USSR was overtaken by Russia. Okay, तो Boris Yeltsin he became the that time he became the president of रशिया. ओके, आगे तो पूरा आगे सिर्फ रशिया जो एक स्टेट, स्मॉल स्टेट, उसका वो प्रेसिडेंट थे. उसके बाद जब यूएसएसआर खत्म हो गया, रिजाइनिंग ऑफ गोर्बाचेव फ्रॉम हिज सीट मीन्स ब्रेकिंग अप ऑफ यूएसएसआर, क्योंकि उस टाइम में और बहुत सारा स्टेट्स था जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था उस टाइम. तो ऑटोमेटिकली दैट टाइम गोर्बाचेव वेंट अप एंड बोरिस याल्सन इमर्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, होल ऑफ रशिया. तो आप सोच लो उस टाइम में 1991 में, दिसंबर 1991 में देयर वाज नो यूएसएसआर. ओके, तो यूएसएसआर के बदले में क्या हो गया, रशिया. रशिया टुक एडवांटेज एंड रशिया बिगेन टू कंट्रोल द होल ऑफ यूनियन, जो 15 स्टेट्स था, तो इट बिगेन टू रूल डाउन. बट तब भी रशिया पूरी तो कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत स्टेट्स ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया. तो यहाँ पे
हमने क्या लिखा, गर्बाचेव रिजाइन, कम्युनिस्ट पार्टी वाज बैन, क्योंकि दैट टाइम कम्युनिस्ट पार्टी बैन, क्योंकि कम्युनिज्म पॉलिसी सोशलिज्म पॉलिसी काम नहीं आ रहा था। गर्बाचेव रिजाइन, तो कम्युनिस्ट पार्टी का कुछ वैल्यू नहीं था। तो आप सोचो, ओके, राइट फ्रॉम 1917 कम्युनिस्ट पार्टी वाज देयर एंड देन दिस टाइम इट वाज बैन, टोटली खत्म हो गया कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, उसके बाद मेनी स्टेट्स डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस देमसेल्व्स। ओके, बहुत सारे स्टेट्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ओके, और स्टेट्स कौन कौन से थे, जैसे कि लिथुआनिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये 3 स्टेट्स थे जिन्होंने फर्स्ट उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, एस्टोनिया, लिथुआनिया एंड लिथुआनिया। ओके, उसके बाद तुरंत थोड़े बाद ही उन्होंने रशिया ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। रशिया जो स्टेट, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। यूक्रेन ने कर दिया, बेलारूस ने कर दिया। ओके, सो आफ्टरवर्ड्स धीरे धीरे और भी जो बहुत सारा स्टेट्स था वहाँ पे, सब स्टेट्स ने अपने आप को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस। ओके, जैसे कि जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, काजाकिस्तान। ओके, और बहुत सारा जो 15th रिपब्लिक जो बना था, यूनियन जो बना था, वो पूरा यूनियन डिस्ट्रॉय हो गया। और सब सारा जो यूनियन है वो फिर उन्होंने सारा यूनियन में एक लीडर ने जन्म ले लिया। डिफरेंट यूनियन में डिफरेंट कोई लीडर आ गया और दे हैव बिगन टू रूल दैट एरिया। जो आगे वो सारा 15 स्टेट जो एक साथ था वो पूरा सेपरेट हो गया। ओके, बट सम ऑफ द स्टेट्स हैज बीन कंट्रोल बाय रशिया, और फिर धीरे धीरे देखा गया जो सेपरेट होते होते फिर सम स्टेट्स अगेन केम टुगेदर, और रशिया के अंडर में आके उन्होंने फिर एक यूनियन बनाया। ये यूनियन नहीं था, मतलब एक कॉमन पॉलिसीज को अडॉप्ट करने के लिए दे केम टुगेदर, दे हैव मेड ए ग्रुपिंग। तो उस ग्रुपिंग का नाम उन्होंने क्या दिया, ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये कौन सा था, इट फॉर्म्ड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसको हम लोग और एक नाम से बोलते हैं, दैट वाज CIS। ओके, तो दैट वाज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो वो जो स्टेट्स को बना था, जो वो कितने स्टेट्स थे, 12। तो हमारा पास कितना स्टेट्स था, 15 स्टेट्स। उसमें से 3 स्टेट्स एस्टोनिया, लिथुआनिया ने ज्वाइन नहीं किया इसको, और बाकी जो 12 स्टेट्स थे उन्होंने ज्वाइन किया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अंडर में आके, मतलब ये रशिया के डोमिनेशन के अंडर में आके, दे वांटेड टू हैव सम कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज, बिकॉज ऑल द स्टेट्स, ऑल ऑफ द यूएसएसआर बिकेम डिवास्टेटेड दैट टाइम। इकोनॉमिक कंडीशन टोटली फेलियर हो गया था उस टाइम में। तो उन्होंने सोचा कि एक साथ ग्रुपिंग करके हम कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी, कॉमन वाला इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, दैट वाज द थिंकिंग इन द माइंड ऑफ दिस पीपल एट द टाइम, और स्टेट्स। नाउ आफ्टरवर्ड्स ये जो आए, ये सब आने के बाद दे हैव अडॉप्टेड कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी एज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो दे हैव अल्टीमेटली रशिया हैज अडॉप्टेड कैपिटलिज्म, जो इतने सालों में नहीं हुआ। दे हैव अडॉप्टेड कैपिटलिज्म एंड टुगेदर दे हैव आल्सो अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक पैटर्न, डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। जो हमने पढ़ा था ना, देयर वाज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन रशिया, मतलब इन यूएसएसआर, तो वो डेमोक्रेटिक पैटर्न, डेमोक्रेटिक स्टाइल में फिर वो आने लगा धीरे धीरे। ओके, सो आफ्टरवर्ड्स दे हैव अडॉप्टेड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज, बिगिन टू अडॉप्ट प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज और कैपिटलिज्म पॉलिसी। तो हम जो फिर धीरे धीरे जब और पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कैसे वो कैपिटलिज्म पॉलिसी में आए। ओके, लास्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, रशिया टूक ओवर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड इन 1991। तो यहाँ पे लिखा था मैंने, रशिया टूक ओवर यूएसएसआर, मतलब यूएसएसआर जब हट गया उसके बाद क्या आ गया, रशिया आ गया इन 1991, और यूएसएसआर खत्म हो गया। तो आगे जो रशिया को हम लोग जानते थे यूएसएसआर, उसको आज हम क्या नाम से जानते हैं, रशिया। ओके, बट एक बात है, जब रशिया आ गया 1991 में, जब रशिया बन गया, तो रशिया फिर सुपर पावर नहीं हुआ। यूएसएसआर जो सुपर पावर था 1991 तक, वो खत्म हो गया, बिकॉज ब्रेकिंग ऑफ दिस मेनी स्टेट्स लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। और उसके बाद रशिया ने टूक ओवर कर लिया, बट रशिया को वो स्टेटस, वो मान, वो सम्मान नहीं, उस तरह से नहीं मिला, और वो फिर सुपर पावर में नहीं आ गया। ओके, तो ऑटोमेटिकली हमने जो पढ़ा, जो चैप्टर का नाम है हमारा, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव, हाउ मिखाइल गोर्बाचेव वाज ए बिट, और बहुत सारा परसेंटेज में हम लोग अगर गिनती करेंगे तो सक्सेसफुल, कॉज और रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ
USSR. Okay, he was once upon a time a successful person, but when he came to power और उनको जब कंट्रोल करना नहीं आया तो ऑटोमेटिकली he became like in a mismatch policy. अभी क्या करे ना करे, side by side one hero came up, that is Boris Yeltsin, and whole of the thing became something like messy type. Okay, और सब कुछ खत्म हो गया and USSR collapsed in 1991. तो आज हम USSR को कौन सा नाम से जानते हैं? रशिया फिर यूएसएसआर के जगह ले लिया, वो बाकी स्टेट को डोमिनेट करने लगा और रशिया ने ऑटोमेटिकली जाके इंटरनेशनल एरिना में उन्होंने अपना एक स्थान बना लिया। उन्होंने अनाउंस कर लिया कि रशिया इज द ओवरटेकर ऑफ यूएसएसआर। ओके, एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट में भी उन्होंने अपने आप का एक स्थान बना लिया, क्योंकि 5 जो मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें एक मेंबर जो है वो रशिया भी है उसमें। ओके, दैट टाइम 1991 में जाके उन्होंने अपने आप को ज्वाइन कर लिया इन दी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो रशिया हैज इमर्ज एज ए ग्रेट पावर, नो डाउट, बट नॉट एज ए सुपर पावर। ठीक है, ये था गर्बाचोव पॉलिसीज। नाउ आप और एक चीज मैंने यहाँ पे लिखा, आप देखो, सोवियत अफगान वार 1979 टू 1989। यहाँ पे हम लोग बहुत सारा कॉसेस पढ़ेंगे कि कौन सा कॉसेस के कारण डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो उसमें एक कॉज जो था वो था सोवियत अफगान वार। एक्चुअली इन 1979 अफगानिस्तान has been indulged in war, सिविल वार्स में वो इंडल्ज हुए थे और वहाँ पे बहुत सारा जो अपने आप में जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, दे वेर एक को दूसरे ने ओवरथ्रो कर दिया। उस तरह से जब सोवियत यूनियन में जब इंटरफेयर किया वहाँ पे जाके, तब वहाँ का जो लीडर था वो कौन सा था? ही वाज called Hafizullah. Okay, तो हाफिजुल्ला जो था, he was not that much a friend of Soviet Union. तो even in that area, Soviet Union when indulged in that war, क्योंकि सिविल वार खड़ा हो गया और सोवियत यूनियन उसमें जाके उन्होंने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया और जाके उन्होंने क्या किया, अपना आर्मी आर्म्स एंड एमुनेशन को लेके वो इन्वॉल्व हो गए इन दी सिविल वार्स ऑफ यूएसएसआर। ओके, तो वहां पे हफीजुल्ला जो है, हफीजुल्ला अमीन, उनको उन्होंने मार दिया। मारने के बाद उन्होंने अपना एक खुद का एक जो वहां का जो एक इंसान जो था प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ही बिकेम दी प्रेसिडेंट ऑफ सिस्टम को चेंज कर दिया, ही बिकेम दी प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान दैट टाइम। ओके, सो हिज नेम इज बारबार। तो वो जो आए उनके बाद ही वॉज लाइक ए क्या बोलते, फ्रेंड्स ऑफ यूएसएसआर। जो यूएसएसआर बोलेगा वो सुनेगा। ओके, सो दैट टाइम ही वॉज इन्वॉल्व इन दैट इन द यूएसएसआर पॉलिसीज जो टैक्टिक्स है उसमें वो इन्वॉल्व हो गए। और इसके बाद दिस थिंग जो ये जो ओवरथ्रो हुआ, ये जो सिविल वॉर हुआ और इनको मार के और एक जो इंसान बैठ गया, वो दैट वॉज नॉट लाइक बाय मुजाहिदीन, क्योंकि उस टाइम में और एक ग्रुप, एक इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिबेल ग्रुप वहां पे खड़ा हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं मुजाहिदीन। ओके, जिसको हम लोग अभी के नाम से जानते हैं हिजबुल मुजाहिदीन। तो दैट टाइम जो ये मुजाहिदीन जो थे, मुजाहिदीन पीपल, they were not liking the interference of Soviet Union, so these people also indulged in war against Soviet Union। ठीक है, तो एक तरफ था गवर्नमेंट, अफगानिस्तान गवर्नमेंट एंड अफगानिस्तान गवर्नमेंट एंड क्या बोलते हैं उसको, सोवियत यूनियन, और एक तरफ था मुजाहिदीन। ओके, मुजाहिदीन ग्रुप्स एंड ऑल। सो मुजाहिदीन ग्रुप जो था, उनको फिर जब यूएस ने देखा कि यूएसएसआर जाके यहाँ पे इंडल्ज हो गया वार में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके आर्म्स एंड एमुनेशन दे के हेल्प करने लगे मुजाहिदीन को। ओके, ये जो रिबेल्स थे, तो एक तरह से बोला जाए तो नेटो फोर्स, जो नेटो का जो एक फोर्स है, नेटो फोर्स का जो आर्म्स एमुनेशन मेंबर्स है, दे एक्चुअली केम एंड दे आर स्टार्टेड हेल्पिंग दिस मुजाहिदीन पीपल। तो ये जो सिविल वार ये बहुत लंबा तक चला बिटवीन द मुजाहिदीन एंड द गवर्नमेंट, और एक्चुअली ये प्रॉक्सी वार में यूएस और यूएसएसआर ही आ गया, एक्चुअली जो फ्रंट में नहीं आए बट इनडायरेक्टली आ गए ये। ओके, ये जो वार चला ये 1979 से लेकर 1989 तक चला ये वार, काफी लंबा समय। और इस टाइम में सोवियत यूनियन ने क्या किया, उन्होंने अपना मनी, अपना फाइनेंस, अपना आर्मी, सब कुछ मिलिट्री स्ट्रेंथ, जो टेक्नोलॉजिकल जो भी आर्म्स एमुनेशन उन्होंने बनाया था, एवरीथिंग हैज बीन पुट अप फॉर दिस सिविल वार्स जो वहां पे चल रहा था। और इस दौरान क्या हुआ, उन्होंने वो इतना इंडल्ज हो गए ये वार में कि उनका देश का जो कंडीशन खराब होते जा रहा था, उन्होंने ये इतना केयरिंग नहीं किया।
ओके तो ऑटोमेटिकली दैट टाइम्स जो 1979 के टाइम में देखा गया कि सोवियत यूनियन में डोमेस्टिक कंज्यूमर प्रोडक्शन धीरे धीरे लो होने लगा. ओके तो रशिया है सॉरी यूएसएसआर हैड स्टार्टेड इंपोर्टिंग फूड फ्रॉम द आउटसाइड, प्रोडक्शन लो होने लगा दैट टाइम. तो ऑटोमेटिकली दैट टाइम द इकोनॉमी ऑफ रशिया यूएसएसआर बिकेम स्टेगनेंट. ओके एक तरह से स्टेगनेंट ही हो गया उस टाइम में, और टेक्नोलॉजिकल जो भी ग्रोथ जो भी था वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया. तो यूएसएसआर एक्चुअली सुपर पावर में खड़ा हुआ, नो डाउट, बट यूएस बिकेम मोर सक्सेसफुल देन यूएसएसआर. ओके और क्योंकि ये इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि उन्होंने इस जगह पे उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया, और बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने बहुत सारा चीज, बहुत सारा ह्यूज टाइप ऑफ रेवेन्यू को उन्होंने वहां पे लॉस कर दिया उन्होंने. ओके सो दिस इज वन ऑफ द कॉज ऑल्सो टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. वो बोलते हैं ना कुछ एक शुरुआत से होता है, स्लाइड शुरुआत से होता है, उसके बाद धीरे धीरे और भी बढ़ते जाता है. तो एक शुरुआत का जो एक कारण था वो था ये सोवियत अफगान वार. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी, क्योंकि ये स्टोरी ही है तो आप ये समझना और धीरे धीरे इसको समझते जाना. ओके थैंक यू स्टूडेंट्स.